Welcome students, this is your very own Mukesh sir. Welcomes class 10 students on topic polynomial. Your chapter is polynomial. Okay. Till date we have discussed about the relationship between the zeros and the coefficient of quadratic polynomial. We were dealing quadratic polynomial and related exercise. We have completed till exercise 2.3. Okay, now that is the entire chapter. Okay, now what I have brought for today you all, मैं क्या लाऊं आपके लिए है ना, some important question asked in CBSE board exam. Okay, from chapter 2. It is regarding from the quadratic polynomial. This all four question is based on the relationship between the zeros and the coefficient of a quadratic polynomial. Okay, ये चार क्वेश्चन है, ठीक है. All fours are almost ना slightly different. Okay ना, काफी सारे क्वेश्चंस आपको बुक्स वगैरह में, साइड बुक्स में आपको मिल जाएंगे. आप इसको जरूर से बना लें, ठीक है. If you like to give a try, then pause the video, write the questions and give a try. Okay है ना, and please है ना make me है ना know that you are able to solve or not. Okay, कमेंट करके जरूर बताना कि आपसे ये बना या नहीं बना, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है. एक बार अच्छे से देख लो. फर्स्ट क्वेश्चन, let's start. First question, okay now, if one zero of the polynomial a square plus 9 into x square plus 13x plus 6a is the reciprocal of other, find the value of a. इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इसके दो जीरोस होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है. तो मान लेते हैं, पहले लिखते हैं px. मेरा px पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a. ओके, लेट अल्फा and 1 by alpha. Why 1 by alpha? Because 1 0 of the polynomial is reciprocal of other, ठीक है. तो अल्फा and 1 by alpha are the zeros of polynomial px. पहले पा चुके हैं polynomial को, हम एक बार दिखा देंगे px है, बाद में px लिखते जाएंगे ना. If 1 is reciprocal of other, तो हम कौन सा प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो ये ले सकते हैं कि दो रेसिप्रोकल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1. जैसे एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1. तो हम क्या ले सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये वाला हम ले सकते हैं. एक ये रिलेशन ले सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू द कांस्टेंट अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये रिलेशन पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में. क्या पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू द कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये हम लोग रिलेशन पहले भी पढ़ चुके हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहला जीरो अल्फा है, दूसरा 1 बाय अल्फा. कांस्टेंट टर्म यहां कितना है 6a डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 9. It will be 1 equals to 6a upon a square plus 9. To solve it, a square plus 9 equals to 6a. A square minus 6a plus 9 equal to 0. This becomes a minus 3 to the whole square. Since 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, ये क्या मिल गया, a minus 3 का होल स्क्वायर. देख लो अच्छे से, a square minus 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है. तो वी गेट a इक्वल्स टू 3. दिस इज आवर आंसर. ये पहला क्वेश्चन बहुत आराम से बन गया, ठीक है. चलो, ओके, कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन. इट इज सेम. द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ a. Have a look again now. We know
we know what we know, product of zeros equals to constant term upon the coefficient of x square. Product of zeros equals to constant term upon coefficient of x square. Given that product of zeros is 4, its value becomes 4. Constant term is minus 6 and coefficient of x square is a. A becomes minus 6 upon 4, that is a becomes minus 1.5. This is your answer. Very easy. Okay. Coming to the third number question. Polynomial is given px equals to 4x square minus 4x minus 3. This is your polynomial. Alpha and beta are the zeros. If alpha and beta are the zeros, then we know what we know. Alpha plus beta should be minus the coefficient of x divided by coefficient of x square, minus coefficient of x upon coefficient of x square. That is, alpha plus beta becomes minus 4 upon 4. Okay, coefficient of x is minus 4, minus becomes plus, that is 1. Alpha plus beta we get 1. Okay, next, also alpha into beta equals to constant term upon coefficient of x square. Constant term is minus 3 and coefficient of x square is 4. Alpha into beta becomes minus 3 upon 4. This two relationship we know. अब इसमें क्या आएंगे कि अल्फा और बीटा है, तो आपको दो रिलेशन पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा. उसके बाद कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन सबसे पूछ सकते हैं. तो इसमें क्या करोगे, आप तरह तरह के अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज करोगे जो आप अब तक पढ़ चुके हो. ठीक है, तो आप बहुत सारे अलजेब्रिक फॉर्मूलाज यूज करोगे. ठीक है, तो पहला इसमें है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा है. ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछा है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस कैन बी गेन बाय अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर minus 2 into alpha into beta. A square plus b square can be written as a plus b का होल स्क्वायर माइनस 2ab. देखो तो एक और दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy. देखो तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ एक माइनस 2xy दिया होता कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा. अलजेब्रिक फॉर्मूला हम यूज किए हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ऐसा आप लिख सकते हो. अब पुटिंग द वैल्यूज, वी नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 and value of alpha into beta is minus 3 upon 4. इसको आप कट कर दिए, 1 square minus plus 3 upon 2, 1 plus 1.5, that is 2.5. आंसर पहला बन गया, काफी इजी है. सेकेंड, उसी तरह से सेकेंड पार्ट देखोगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इट कैन बी एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा. देखो तो ऐसा हो सकता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पढ़े हम लोग क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab. ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. आप चेक करो, इसको एक्सपैंड करें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसको माइनस 4ab. ठीक है, ये दिया हुआ था यहाँ पर.
ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा -2ab, और ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये टोटल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये चीज हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट डाउन करेंगे, ठीक है ना, वैल्यूज पुट डाउन करेंगे, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू -3/4 पहले निकाल चुके थे हम लोग, 1 + 3 दैट इज योर आंसर इज 4। ओके, क्लियर है? इस तरह के अलजेब्रिक फॉर्म यूज करके आ सकता है। आपको सिमिलरली पूछ सकता है a क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 इंटू अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा ऐसे करके निकाल सकते हो अगर ये पूछा तो। इसका वैल्यू पता है, इसका ही पता है, इसका ही पता है, इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, सिर्फ अलजेब्रा का फोकस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द लास्ट क्वेश्चन, जस्ट इरेजिंग इट, इसको मिटा दो। Last question, question number 4. If alpha and beta are zeros of polynomial px equals to x square minus 6x plus a and 3 alpha plus 2 beta 20 find the value of a. Okay, this was your question number 4. चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। ठीक है, गिवन, पहले लिख लो गिवन पार्ट, गिवन पार्ट, since px equals to x square minus 6x plus a, then alpha plus beta will be minus coefficient of x upon coefficient of x square, minus coefficient of x that is 6 or coefficient of x square is 1. Alpha plus beta equals to 6. We get the value. Okay, equation 1. Also given 3 times of alpha plus 2 times of beta equals to 20. Equation 2. Now we multiply equation 1 by 2 and equation 2 by 1. We get, what we are going to get, 2 alpha plus 2 beta equals to 12, and this will become 3 alpha plus 2 beta equals to 20. Subtract करते हैं इसको, if we cancel out, minus alpha equals to minus 8, that is alpha equals to 8 ना, अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया 8 ना। ठीक है, ये दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा भी दिया हुआ था, तो हम क्या निकाल लिए भाई, है ना, हम अल्फा, 2 इक्वेशन हो गए अल्फा और बीटा के टर्म में, 2 लीनियर इक्वेशन, तो हम इनको सॉल्व करके क्या निकाल रहे हैं, अल्फा और बीटा। समझ आ गया, एक अल्फा प्लस बीटा मेरा रिलेशनशिप पता है और ये गिवन था, दोनों सॉल्व करके हम अल्फा और बीटा निकाल रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू, इसका वैल्यू पुट कर दोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1 पुट कर दो। अल्फा का वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 पे, तो ये 8 है, तो ये कितना आएगा -2, तो बीटा इक्वल्स टू -2। देखो ये 8 है तब तो 6 होगा, ये -2 होना चाहिए। हमको निकालना क्या था, हमको a का वैल्यू निकालना है। a कहाँ है, एकदम लास्ट में, एक कांस्टेंट की तरह। ठीक है, we know, हमको पता है, we know that alpha into beta equals to constant upon coefficient of x square. Alpha, value of alpha is 8 and value of beta is -2. Constant term in this equation, constant term is our a and coefficient of x square is 1. A equals to -16, we get the our value -16. होपफुली ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताएं, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस को आप है ना सॉल्व करें खुद से।
अगर नहीं बनी तो कमेंट में है ना उस क्वेश्चन को दे दो, है ना, मैं उसे सॉल्व करके आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड आल्सो लाइक, सब्सक्राइब